Hello dear students, today's topic is area related to circle. In this topic, we discuss about arc length of circle, area of sector and segment of the circle. First, the arc length. If we take a circle with center O and we take 2 points A and B on the circumference of the circle, these 2 points divides the circumference in two parts, APB and AQB. APB is the smaller part is of curve is called the minor arc AB. APB is minor arc of AB and AQB is the major arc AB. यदि किसी सर्कल में आर्क ए बी रिप्रेजेंट डिनोट किया है तो दिस रिप्रेजेंट द माइनर आर्क ए बी. नाउ द सेक्टर ऑफ द सर्कल. If we take a circle with center O and we take 2 points A and B on the circumference of circle and join OA and OB, then the circular region enclosed by the two radius and the arc AB, two radius OA and OB and corresponding arc AB is called the sector of the circle. यदि हम रेडियस OA OB को ज्वाइन कर दें तो सर्कल के दो पार्ट हो जाते हैं, OA PB एंड OA QB. ठीक है, OA PB एंड OA QB एंड स्मॉलर पार्ट OA PB इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर एंड मेजर पार्ट OA QB इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल. See, here OAPB is the sector of the circle with center O and angle OAB is called the central angle of the sector. And OAQB is major sector and the central angle of major sector. Central angle of major sector is the reflex angle of OAB, that means 360 degree minus angle OAB. In the diagram में देखिए एंगल ओ ए बी, ये एंगल ओ ए बी ये माइनर सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल है और एंगल ओ ए बी का रिफ्लेक्स एंगल, दिस रिफ्लेक्स एंगल ओ ए बी का रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर मेजर सेक्टर ओ ए क्यू बी. यदि हम एंगल ओ ए बी को थीटा बोलेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा. This is the reflex angle of angle OAB and central angle for major sector. Now the segment of the circle. If we take 2 points A and B on a circle and we join AB, then AB is the chord of the circle. Chord of the circle divides the circle in two parts. Smaller part is called the minor segment and major part is called the major segment. APB is the minor segment of the circle and AQB is the major segment of the circle. That means the portion or circular region enclosed between a chord and the corresponding arc is called the segment of the circle. APB is minor segment and AQB is major segment. Now, formula for finding the area of sector of a circle. Suppose O is the center of the circle and OAOB radius R and APB is the corresponding arc. So, OAPB is the sector of the circle. OAPB is the sector of the circle. And central angle AOB is equals to theta. स्टूडेंट्स, सेक्टर के लिए, सेक्टर ओ ए पी बी के लिए ये सेंट्रल एंगल थीटा है, पर यदि हम पॉइंट ओ के ओ का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है, पॉइंट ओ के अराउंड कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है. वी नो दैट द कंप्लीट एंगल एट पॉइंट ओ इज़ 360 डिग्री. जब यदि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है तब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, देखिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है तो सर्कल का टोटल एरिया कवर होता है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर. सो इफ सेंट्रल एंगल इस थीटा, जब सेंट्रल एंगल थीटा होगा तो सेक्टर का कितना एरिया कवर होगा, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे. नाउ when the central angle is 360 degree then the area of circle is pi r square.
So when the central angle is theta, then the area of sector OAPB is equals to pi r square by 360 into theta, or we can say that theta by 360 into pi r square. Therefore the area of minor sector is equals to theta by 360 into pi r square. ओके ना, यदि हमको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर हम माइनस कर सकते हैं. दैट मीन्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB. दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. और सिंपली हम सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. दैट मीन्स सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर सेक्टर डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल ऑफ OAB, दैट मीन्स 360 डिग्री माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. नाउ द आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल. सपोज हम एक सर्कल ले रहे हैं जिसका सेंटर O है और APB इज़ द माइनर आर्क ऑफ द सर्कल. वी हैव टू फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ APB. APB मीन्स आर्क AB. यदि सर्कल का रेडियस R है और सेंट्रल एंगल फॉर आर्क APB इज़ थीटा. सेंटर आर्क APB का सेंट्रल एंगल यदि थीटा है तो हम इसका आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे. सो कंप्लीट एंगल अराउंड पॉइंट O इज़ 360 डिग्री. जब ये पॉइंट O के अराउंड कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है तो आर्क टोटल आर्क लेंथ में दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना हो गया 2 पाई आर. और जब सेंट्रल एंगल थीटा होगा तो आर्क लेंथ APB कितना होगा, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे. ना फॉर सेंट्रल एंगल 360 डिग्री द आर्क लेंथ दैट मीन्स सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. So for central angle theta, then the arc length is 2 pi r divided by 360 degree into theta. That means theta by 360 into 2 pi r. This is the formula for arc length. That means arc length is equals to theta by 360 into pi r 2 pi r. For major arc length, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में हम आर्क लेंथ स्मॉल माइनर आर्क लेंथ APB माइनस करेंगे. दैट मीन्स 2 पाई आर माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर. स्टूडेंट्स याद रखिए, जब हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तब थीटा बाई 360 के साथ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन होता है. और जब हमको आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी होती है तब थीटा बाई 360 के साथ सर्कमफेरेंस दैट मीन्स 2 पाई आर का मल्टीप्लिकेशन होता है. नाउ द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द सर्कल. यदि हमको सर्कल के सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो दिस इज़ द सिंपल. यदि हम एक सर्कल लेंगे सेंटर O का और AB कॉर्ड है तो APB इज़ द माइनर सेक्टर ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल. तो हमको सेगमेंट APB का यदि एरिया फाइंड आउट करना है तो सेक्टर OAPB के एरिया में से ट्रायंगल OAB का एरिया यदि हम माइनस कर दें तो सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा. ठीक है. यदि सेगमेंट का सेंट्रल एंगल थीटा है, सेंट्रल एंगल फॉर सेगमेंट APB थीटा है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. और सेक्टर का एरिया थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB. ओके. और ट्रायंगल OAB का एरिया हम कोई भी सिंपली ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा. दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB. नाउ वी टेक वन एग्जांपल. Suppose in a circle of radius 21 centimeter, the arc subtend an angle 60 degree at the center. Then find the length of arc, area of sector formed by the arc, and area of segment formed by the corresponding chord. तो क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक सर्कल गिवन है. सर्कल का रेडियस 21 सेंटीमीटर, सेंटर O, रेडियस 21 सेंटीमीटर है. तो हमको आर्क APB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस आर्क APB से रिलेटेड सेक्टर OAPB सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है एंड रिलेटेड करस्पॉन्डिंग सेगमेंट दैट मीन्स सेगमेंट APB का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके. नाउ गिवन दैट the radius of the circle
R is equals to 21 centimeter. Arc subtend an angle 60 degree at the center. That means central angle for arc AB, theta is equals to 60 degree. So the arc length, formula for arc length, theta by 360 into 2 pi r. Put the values, theta 60 by 360 into 2 pi 22 by 7 and r 21. नाउ कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन के बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा 22 सेंटीमीटर. Therefore the arc length of arc AB is equals to 22 centimeter. Now the area of sector formed by arc AB. Arc AB से जो sector form हुआ है, that means area of sector OAPB. Formula is theta by 360 into pi r square. Put the values, 60 by 360 into pi 22 by 7 into r square 21 into 21. इसको यदि हम कैलकुलेट करें तो हमको वैल्यू मिल रही है 11 इंटू 21. दैट मीन्स 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ यदि हमको सेगमेंट APB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट हमको सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा. सो फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सेक्टर का एरिया तो हमने अभी निकाला है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, the triangle AOB में OA and OB radius of the circle and central angle is theta 60 degree. In triangle AOB, angle AOB is equals to 60 degree and OA and OB is equals to radius of the circle. यदि ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स एंगल A is equals to B. Suppose it is equals to X. Then by angle sum property, x plus 60 degree is equals to 180 degree. So we get x is equals to 60 degree. That means triangle OAB is an equilateral triangle of side 21 centimeter. So simply हम equilateral triangle के एरिया का फॉर्मूला लगा के ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे. देन एरिया ऑफ equilateral triangle OAB is equals to √3/4 साइड स्क्वायर. That means √3/4 into 21 into 21, 441 √3/4 centimeter square. Now the area of segment formed by corresponding chord is equals to area of sector minus area of triangle. Area of sector 231 minus area of triangle 441 √3/4. So area of segment is equals to 231 minus 441 √3/4 centimeter square. यदि हमको √3 की वैल्यू दी जाए तो हम इसको पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इस तरीके से हम फार्मूला का यूज़ करके आर्क लेंथ, सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. थैंक यू.